Good afternoon, everyone. We'll just give Good 1 afternoon, minute ma'am. that everyone joined. Good afternoon, everyone. Let's start the class. Today we have to start training and development, right? Yes, ma'am. That's another topic. So can someone tell me what is training? Training is a word which is very commonly heard. We have heard it a lot of times. अगर आप लोग बीबीएम सेकेंड ईयर में है, जब थर्ड ईयर में जाएंगे तो खुद भी आप इंटर्नशिप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे. सो व्हाट पिक्चर डू यू ड्रॉ ऑफ ट्रेनिंग? क्या समझ में आता है ट्रेनिंग से? Switch on your cameras and please make the class interactive. What do you understand by training? Tell me. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. The others who have joined, what do you mean by training? Internship training सुना है? Yes, ma'am. What is मैम training? ट्रेनिंग में स्किल अच्छा होता है, एक्सपीरियंस होता है, इंफॉर्मेशन होता है, नॉलेज मिलता है हम लोग को. Very good. और मैम कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, हो जाता है ट्रेनिंग के बाद. ठीक है. Very good. Others, any value addition to this answer? Sunny has answered, that is right. See, when we talk about training and development, we understand the fact that training is imparting new skills to the people. When we are imparting new skills to the people, then that is known as training. The major difference between training and development is that while training is job centered, development is mostly career centered. Okay. Development deals with the overall development of a person. That is known as development. And training is short term. You have a job, you need to learn how to perform on that job, and then that is how, and that is why you need training. Now, कोई organization एक जब recruitment करती है, for example, when TCS recruits people, then in 1 year it recruits around 200 to 250 people for the same post. I mean, of course, there are those number of posts, but they recruit the fresh hires. Yes or no? Yes, ma'am. They recruit that many numbers of people. So do you think that those people who have been hired can be put directly to work without giving them training? ऐसा हो सकता है कि जिन लोगों को, जैसे टीसीएस अगर एक साल में सिस्टम्स इंजीनियर के लिए 200 लोगों को हायर करती है, देन विदाउट गिविंग देम ट्रेनिंग, इज इट पॉसिबल कि उन सारे लोगों को काम पे लगा दिया जाए? No, ma'am. Without training is not work. Not possible. Why are others not answering? Yes, no.
just logged in and sitting idly. Then I'll remove each one of you and I'll just mark the attendance for Sunny in that case. Please make the class interactive. This is for your learning. Workshop बहुत दिन तक नहीं चलता है. Workshop का एक limited time period होता है. आपका main course नहीं है ये. So as soon as the topics in the workshop will be over, we'll be done with the subject. Okay. So why is training important? अभी आप ये बताइए कि ट्रेनिंग आज के टाइम पे क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों लगता है तुमको कि ट्रेनिंग दिया जाना जरूरी होना चाहिए, ये बताओ. इसलिए मैम कि जब तक ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो मैम काम नहीं हो पाएगा अच्छा से मैम. सीखने के लिए मैम दिया जाता है मैम ट्रेनिंग. मैम स्किल सिखाने के लिए डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग जरूरी है मैम. स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग जरूरी है. और हम ट्रेनिंग से कॉन्फिडेंस और नॉलेज के लिए भी. हाँ, गुड गुड गुड, कॉन्फिडेंस आता है. अच्छा, एक अच्छा पॉइंट है. और देखो, ट्रेनिंग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. ऐसा होता है क्या कि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपने पर्पस के लिए ट्रेन कर रही है तुमको? जब ऑर्गेनाइजेशन से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है तुमको, तो इसका क्या मतलब है कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट हो रहा है उससे, या तुम भी बेनिफिट होते हो? हम दोनों हो रहे हैं. दोनों होते हो. तो क्या तुम अलग अलग करके बता सकते हो कि क्या बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को है और क्या तुमको है? जैसे एक पॉइंट तुमने बताया कॉन्फिडेंस, तो ये कॉन्फिडेंस तो तुम्हारे अंदर आएगा. तुम ज्यादा बेटर ट्रेन रहोगे, तुम ट्रेन रहोगे तो ऑब्वियसली यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट. एक्सेप्ट दैट? यस मैम. चल वी एक्सेप्ट दैट? मैम कंपनी का टाइम बचेगा और दूसरा कि काम ज्यादा हो पाएगा. ओके. अच्छा, why are you not focusing on the productivity part? कि अगर आप ट्रेन होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा. बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस मैम. प्रोडक्टिविटी क्या होता है बताए थे ना बहुत स्टार्ट में आपको. व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? And I made you write, all of you, I made you write it in your copy. What is productivity? देखो, वर्कशॉप में बहुत छोटी छोटी बात बताई जाती है which is actually the very important things for your concept. सेकेंड ईयर में आने के बाद अगर प्रोडक्टिविटी डिफाइन नहीं कर सकोगे तो it is a little not good thing. प्रोडक्टिविटी क्या होता है? किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी, कितनी बार ये वर्ड सुने होंगे? सुने हो ना? मैम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में आई थिंक उत्पाद या उत्पादन बोला जाता है. आई नीड टू चेक इट व्हाट इट इज कॉल्ड इन हिंदी. लेकिन प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है द टोटल आउटपुट ऑफ वर्क, जितना काम किया, जो टोटल आउटपुट है, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पीपल. ठीक है? यानी कि इमेजिन करो कि तुम्हारे बीबीएम में 60 बच्चे हैं. ठीक है? 60 people, 60 students are there in the BBM. अच्छा चलो, तुम लोग बीबीएम के एग्जाम्पल से नहीं समझोगे, ऑर्गेनाइजेशन से ही. पेन बना रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन, पेन बना रहा है. अगर 50 लोग मिल करके 500 पेन बनाते हैं 3 घंटे में, एंड दिस इज द आउटपुट, द टोटल आउटपुट इज व्हाट? 500, एंड टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इज व्हाट? 50. ओके, सो दैट इज प्रोडक्टिविटी. अगर तुम ट्रेन होगे, तुमको अगर ट्रेनिंग दी जाएगी, तुम ज्यादा बेहतर तरीके से ट्रेन होगे, तो क्या तुम बेहतर काम नहीं करोगे? यस मैम. किस तरीके से बेहतर काम करोगे ये बताओ. चीजों को समझो प्लीज, डू नॉट जस्ट लर्न इट अप. कैसे बेहतर काम करोगे? रिपीट अगेन. ट्रेनिंग बेहतर होगा मैम इसलिए. हाँ, तो ट्रेनिंग से क्या होगा ये बताइए. आप लोग मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो मैनेजमेंट के हिसाब से, मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बोलिए.
सी नो आंसर, हम बताएं अब। देखिए Yes. प्रोडक्टिविटी बताया आपको अभी कि सपोज 50 workers are there in the organization and 50 workers are there in the production and these 50 people are producing 500 pens. Now again same set of 50 people, यही 50 लोगों को अगर ज्यादा बेहतर तरीके से आप ट्रेन करेंगे, if you train them accordingly, if you train them properly, then what happens that these 50 people will probably be able to deliver more. ये ज्यादा डिलीवर करने की क्षमता रखेंगे. So in that case the overall productivity will raise क्योंकि ये ज्यादा आउटपुट देंगे. Okay, so नीचे डिनोमिनेटर सेम रहेगा और न्यूमरेटर अगर चेंज होगा, बढ़ेगा, तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कि घटेगी कि कांस्टेंट रहेगी? टेल मी. This is basic maths. न्यूमरेटर बढ़ेगा और डिनोमिनेटर सेम रहेगा, तो रेशियो बढ़ेगा कि उतना ही रहेगा? इक्वल ही रहेगा. इक्वल रहेगा. बढ़ेगा मैम, बढ़ेगा मैम. बढ़ेगा. कौशल 6/2 कितना होता है? क्या मैम? 6/2 कितना होता है? 6 divided by 2. 12. 6 divided by 2. No मैम. 3 मैम. 3 होता है. 3 होता है. 8 divided by 2 कितना होता है? और 4. I am asking Kaushal, wait, no one will answer. 6/2 तुमने कहा 3 होता है. 8/2 कितना होता है? 4 होगा मैम. Wait, I am asking him. Let him understand. 8 divided by 2 4 कितना होगा? 4 होगा. 40. Yes मैम. तो तुम इतनी देर से क्या सोच रहे थे? It's a basic thing. 6/2 पूछे, हम 8/2 पूछे, तो न्यूमरेटर Yes, बढ़ा ना? Yes मैम. नीचे तो सेम रहा. Denominator is 2 in both cases and numerator is 6 in one and 8 in second. न्यूमरेटर बढ़ा तो क्या हुआ? रेशियो बढ़ा कि घटा? बढ़ेगा मैम. बढ़ेगा ना? अब समझ में आया? Yes मैम. ठीक है. एंड व्हाई इज प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड? क्यों प्रोडक्टिविटी बढ़ती है? इसका कारण ये है, you start after the training thing, you start better utilization of the resources, you start optimum utilization of the resources. जब वर्कर्स को ट्रेन किया जाता है या एम्प्लॉइज को ट्रेन किया जाता है, they are made to learn the optimum utilization of resources. Optimum matlab na overutilization, na underutilization. Okay. Also, the scrap or wastage is reduced to a great extent. Scrap और wastage इन दोनों को to a great extent reduce करने में helpful होता है ट्रेनिंग. इसीलिए प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. Understood? Now you write down. लिख लो थोड़ा सा. What is training? लिखिए. Training means imparting new skills to the employees. Training is imparting new skills to the employees for doing their jobs. For doing their jobs. While development denotes overall development of personality of the employees.
overall development of personality of the employees. A skill acquired through training, है ना? A skill acquired through training is an asset for the organization. A skill acquired through training is an asset for the organization. Which can be taken away by the complete elimination of the need of that skill. By the complete elimination of the need of its skill. Because of technology change. Because of technology change. ट्रेनिंग का नीड क्यों होता है? तुम लोगों में से कुछ ने बताया अभी कि कॉन्फिडेंस आता है, स्किल्स मिलता है, नॉलेज होता है, ये सारी बातें ठीक है। अब थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन, ये सब तुमने जो बोला ये इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से है, बट व्हाट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू? फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू वी अंडरस्टैंड दैट ट्रेनिंग इम्पार्ट करने से क्या होता है? ट्रेनिंग इम्पार्ट करने से नीड क्यों है, क्यों ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है? क्या तुम जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करोगे तब जो तुम्हारी स्किल रहेगी, क्या पूरा लाइफ तुम उसी ट्रेनिंग से गुजार दोगे? नो मैम। क्यों नहीं गुजारोगे? क्यों नहीं गुजारोगे? Answer this question. You are saying that no, हम लोग जो ट्रेनिंग लेंगे Tell me, क्या अभी तुम जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो 5 साल बाद उसी टेक्नोलॉजी पे काम करोगे? 10 साल बाद उसी टेक्नोलॉजी पे काम करोगे? यस मैम। यस मैम। नो मैम। टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली चेंज हो रही है। अपग्रेड हो जाएगा। हाँ, अपग्रेड हो जाएगा या चेंज हो जाएगा। Okay, since the technology is changing so rapidly, so you need to impart those technology training to your employees in order for them to perform the work properly. The second thing is कि the customers have become very quality conscious. अगर तुमको 10 रुपए में कोई पेन मिल रहा है मार्केट में और 10 रुपए में ऐसा पेन मिल रहा है जो कि बहुत अच्छा है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और 9.5 रुपए में मान लो, जस्ट इमेजिन दिस प्राइस, कि अगर उससे थोड़े से कम दाम में भी 9 रुपए में भी ऐसा पेन मिल रहा है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, तो फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम you cannot stick with the one which has inferior quality, since the customers are so much quality conscious. Customers इतने quality conscious है कि उनको अच्छी क्वालिटी चाहिए, and good quality is the outcome of training, because training also leads to standardization of work, यानी एक जैसा काम हमेशा होता है. Then the other thing is stable workforce. This is so obvious. आप ये सोचिए कि अगर आप ट्रेन होते हैं तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे काम करने में, right or not? यस मैम। You'll feel more confident if the employees of your organization are trained. They will
think less about changing the organization, क्योंकि उनको वहां पर अपना पर्सनल ग्रोथ भी दिख रहा होता है। तो वो अगर ऑर्गेनाइजेशन चेंज करने के लिए लेस होंगे, मतलब लेस विलिंग होंगे, टर्नओवर कम होगा, तो इससे जो वर्कफोर्स होता है वो स्टेबल होता है। और अभी के टाइम पे बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि द वर्कफोर्स इज अनस्टेबल। समझ में आया? Yes, ma'am. Then the other thing is, देखो, there are some work in the organization, जैसे कि फैक्ट्रीज वगैरह है। इस फैक्ट्रीज में क्या होता है कि the nature of your work is a little dangerous। तो अगर nature of work dangerous है तो उस केस में तुमको सेफ्टी की ट्रेनिंग दी जाती है। ओके, सेफ्टी ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप सेफ्टी ट्रेनिंग लेंगे और सेफ्टी से काम करेंगे तो देयर आर लेस चांसेस ऑफ यू गेटिंग इनटू एन एक्सीडेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन को भी हैजल कम होगा। अगर एक्सीडेंट कम होगा, डेथ कम होगा, डिसेबलमेंट कम होगा, तो दिस इज गुड फॉर यू एंड फॉर द organization also. This would lead to safety in the organization। और एक और क्वेश्चन का आंसर दो। तुम लोगों को मैनेज करना ज्यादा आसान है या जो बीबीएम फर्स्ट ईयर में जस्ट फ्रेश एंट्री लिया है, जिसको 1 महीना हुआ है, उसको मैनेज करना ज्यादा आसान होगा? हम लोग को सेकंड ईयर मैनेज वाला करना, इसको सेकंड ईयर वाला मैनेज करना आसान है मैम। क्यों? हम लोग को मैम फर्स्ट ईयर वाला को मैम। फर्स्ट ईयर को। अंकित switch on your Yes, camera, ma'am. I want to have a discussion with you। अंकित, switch on your camera। अब बताइए फर्स्ट ईयर वाले को कैसे है? When you were in first year, उससे थोड़ी सी ज्यादा समझ आई है कि नहीं सेकेंड ईयर में तुमको? आइए मैम। फिर फर्स्ट ईयर वाले को मैनेज करना इसलिए आसान नहीं होगा क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है, उनको पता नहीं मैम, है कि कॉलेज में कैसे बिहेव करना है, कॉलेज न्यू का है क्या मैम रूल्स इसलिए। है, रेगुलेशंस है। और दूसरी बात, जब आपको ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे थर्ड ईयर वाले जो बच्चे होंगे, द थर्ड ईयर स्टूडेंट्स विल बी easier to manage than you people। उनके ऊपर ऑलरेडी पढ़ाई का burden है and everything like that। Okay, so they know they are almost on the verge of passing the college। Okay, so they are more serious towards the studies, they'll probably be more serious towards the studies। ये चीज होती है बेटर मैनेजमेंट जो ट्रेन्ड और अनट्रेन्ड एम्प्लॉयज होते हैं। जो अनट्रेन्ड एम्प्लॉयज हैं उनको पता नहीं होता है, उनको डायरेक्शन नहीं होता है। इसीलिए मैनेजमेंट एज अ टूल में कंट्रोल मेथड्स जो होता है, 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़े हो ना? ठीक है, उसमें कंट्रोल भी Yes, एक ma'am. फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, Yes, राइट? कंट्रोल। तो हाँ, कंट्रोलिंग एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। तो जो ट्रेन्ड एम्प्लॉयज होते हैं उनको कंट्रोल करना जो अनट्रेन्ड एम्प्लॉयज होते हैं उनसे ज्यादा आसान होता है, क्योंकि उनको ट्रेनिंग दी हुई होती है, उनको ऑलरेडी पता है कि कैसे बिहेव करना है, रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है। इसीलिए हर वक्त उनको कांस्टेंट सुपरविजन की जरूरत नहीं होती है। ओके, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Write down the need of training। Write down the point, the need of training। First point, changing technology। मैम ये तो आपने लिखवा दिया है। Oh, did you write it? Changing technology and quality conscious Yes, customers। ma'am. But greater productivity, हाँ, stable workforce। stable workforce, increase safety and better management। ये points अभी Yes, explain किया। Okay, Yes, ma'am. now then you write the next topic, objectives of training। Objectives of training। Point number 1, to increase the knowledge of workers in doing specific jobs। To increase
the knowledge of workers in doing specific jobs second, to impart new skills systematically. Systematically, ma'am. Systematically, तरीके से. To impart new skills systematically. Next, to bring about change in the attitude of the workers. To bring about the change in attitude of the workers towards fellow workers, supervisors, and organization. Towards fellow workers, supervisors, and organization. Next, to improve the overall performance of the organization. To improve the overall performance of the organization. Next, to reduce wastage of time and resources. To reduce wastage of time and resources. Next, to reduce the number of accidents. To reduce the number of accidents. अच्छा, नीड के लिए बताओ, तुम्हारा नीड, इंडिविजुअल नीड्स क्या क्या होगा? तुम्हारी अपनी नीड्स, यू नो, एज एन एम्प्लॉय तुमको ट्रेनिंग क्या क्या चीज प्रोवाइड करेगी? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग फॉर एन इंडिविजुअल? बताओ, अभी तो बताया था किसी ने, मैम प्रमोशन मिलेगा. Tell me. फिर से Say. Sunny was answering this question, right? हम कौशल दे रहा है मैम. Higher promotion, better chances of earning, better chances of promotion, stability, job stability, ये सारी चीजें होंगी कि नहीं? आप अगर ट्रेंड होंगे तो ऑब्वियसली यू विल बी अ मोर प्रेफर्ड एम्प्लॉय. जॉब और मैम जॉब का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा मैम. से अगेन. यस मैम. जॉब सिक्योर हो जाएगा. Job security, नहीं, job की efficiency is fine. That efficiency can be, you know, this can be understood in the context of organization, but job stability is something that is very individual. We always seek job stability in an organization, which training provides us. Okay. Now, ये हो गया. Next topic. मैम 6 पॉइंट समझ में नहीं आया. टू रिड्यूस नंबर ऑफ एक्सीडेंट, मैम ये समझा दीजिए. सेफ्टी, अभी जो पॉइंट्स एक्सप्लेन किया, सेफ्टी मेथड. यस मैम. समझ में 6 आया? पॉइंट मैम 6 पॉइंट समझ में नहीं आया मैम. Exactly, I am telling you the safety thing कि organization में बहुत सारा work ऐसा होता है which is dangerous. So when Yes, you go out for trying your hands at those jobs, you should be given proper safety training before that. जैसे गैस चेम्बर से काम होता है, केमिकल फैक्ट्री में बहुत सारा सेफ्टी मेजर्स होता है. आप समझ सकते हैं कि हर फैक्ट्री में डेंजरस काम होता ही होता है.
तो वैसे केसेस में बिना ट्रेनिंग के जाना इट कुड लीड टू डिसेबलमेंट और डेथ। यस मैम। मेथ मशीन भी हो सकता है मैम। जैसे बताओ, who's answering? मेथ मशीन मैम। लेथ मशीन, बिल्कुल लेथ मशीन एकदम होगा इसका एग्जाम्पल। ठीक है, लेथ मशीन बिल्कुल इसका एग्जाम्पल। कभी देखिए हो एनएचपीसी में इंजीनियर्स वगैरह को कितना सेफ्टी मेजर्स दिया रहता है। तो दैट इज सेफ्टी मेजर्स। बहुत सारा सेफ्टी मेजर्स होता है, गियर होता है, डिवाइसेस होता है, वो सब पहन के, जैसे गैस चेम्बर पे जो लोग काम करते हैं उनको ग्लासेस दिया जाता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर आईज। ओके, नाउ राइट डाउन नीड ऑफ ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉइज। ये एम्प्लॉइज के पॉइंट ऑफ व्यू से need of training for the employees. Number one, quick learning. Quick learning. Number two, higher productivity. Higher productivity. Number three, standardization of procedures. Standardization of procedures. Standardize करना मतलब कि आपके काम में अनइवननेस नहीं आएगा, 19-20 नहीं होगा। When you are producing something, you will produce it evenly in a standardized form. There has to be a standard fixed for doing anything, and this is what training does. Standardization of procedure. Next, less supervision. Less supervision. Next, economical operations. ये चीजें आप एचआर वर्कशॉप को लाइटली ले रहे हैं, लेकिन आपके इंटरव्यू का जो भी क्वेश्चंस होता है वो बहुत ज्यादा घुमा फिरा करके एचआर तक आता है। एंड एचआर का मतलब सिर्फ एचआर नहीं होता है, इसमें आप ऑर्गेनाइजेशन के अदर डिपार्टमेंट्स के भी बारे में जान रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 2-3 कॉमन क्वेश्चन होता है, व्हाई शुड आई हायर यू, इज देयर एनीथिंग दैट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू की लास्ट में पूछा ही जाता है। आप अगर एचआर वर्कशॉप ठीक से करेंगे, you will be able to have an answer in a more comprehensive manner with a wide, referring to wide connotations of the things. आप ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को समझ सकेंगे। You'll be able to answer it more smartly than others. Yes ma'am. Right. Yes ma'am. Economical operations. Next, higher morale. Higher morale. Next, preparation of future managers. Preparation of future managers. Next, better management. ठीक है, अब ये जितने पॉइंट्स लिखे ये एज एन एम्प्लॉय आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो इकोनॉमिकल ऑपरेशंस का क्या मतलब हुआ? दैट आफ्टर ट्रेनिंग यू विल बी एबल टू परफॉर्म इकोनॉमिकल ऑपरेशंस, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब इकोनॉमिकल का क्या मतलब होता है? सस्ता, that you will be able to reduce the scrap or wastage, and then you will be able to perform an operation in a more cost efficient and time efficient manner. Okay, this is the meaning of economical operations. Now, understood? Now you write types of training. ये लिखिए कितने टाइप का ट्रेनिंग होता है। आप जो इंटर्नशिप करेंगे 3rd ईयर में, वो भी एक टाइप का ट्रेनिंग ही है। वो किस टाइप का ट्रेनिंग करेंगे, क्या करेंगे आप?
इंटर्नशिप करेंगे. Yes, ma'am. Internship is also a type of training. Write down types of training. Number 1, job training. Number 2, induction training. Number 3, apprentice training. Apprentice training. Number 4, internship training. Apprentice training, internship training, and refresher training. And refresher training. Okay. Yes, ma'am. ये हो गया टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग. ब्रॉडली आप ऐसे ट्रेनिंग मेथड्स को देखे होंगे. इंटर्नशिप मतलब, इंटर्नशिप में क्या करते हैं आप जो बुक में अभी पढ़ रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर में पढ़े तुम, जो सेकेंड ईयर में पढ़े, जो थर्ड ईयर में थोड़ा बहुत पढ़ के जाओगे इंटर्नशिप करने के लिए, उसमें क्या होगा, जो तुम्हारा थियोरेटिकल नॉलेज है, जो तुम्हारा थियरी में तुम पढ़ रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो, उसको तुम प्रैक्टिकल में देखोगे. Yes, ma'am. जैसे अभी तुम organization, you had this business organization in the first year, right? Yes, ma'am. है ना. environment वगैरह, ये सब का impact तुम देखोगे जब Yes, ma'am. internship करने के लिए जाओगे, when you will go for your internship training. For example, HR में भी तुम जितना पढ़ रहे हो, जब तुम जाओगे वहां पर तब तुमको फील होगा कि ट्रेनिंग क्या होती है, क्यों जरूरी होती है, और इसका रेलेवेंस क्या है. So that will be again putting your theoretical knowledge into the practical application is your internship. अब कई जगह पे ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है कि आप इंटर्नशिप करने गए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में, कि आप इंटर्नशिप करने गए और आपको वहीं पे एब्जॉर्ब कर लिया गया. आफ्टर दैट अगर आपका इंटर्नशिप अच्छा रहा, आपने अच्छा परफॉर्म किया, तो फिर आपको फिर उसी ऑर्गेनाइजेशन में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा एज फ्रेश एम्प्लॉयज, आपका कोर्स खत्म होने के बाद. ये सुने कि नहीं, कैसा होता है? Yes. अगर तुम्हारा काम अच्छा काम इंटर्नशिप, करना है. हाँ, अगर तुम्हारा काम अच्छा रहा इंटर्नशिप में, तो आफ्टर योर कंप्लीशन पीरियड ऑफ द सिलेबस, यू कैन बी कॉल्ड टू जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ट्रेनिंग तो ऑलमोस्ट वो दे ही चुके होते हैं आपको. उसी तरीके से अप्रेंटिस ट्रेनिंग होती है. अप्रेंटिस का क्या मतलब होता है? अप्रेंटिस मतलब कि जॉब पे आने के पहले जो आपको तैयार किया जाता है, दैट इज अप्रेंटिस ट्रेनिंग. इन दैट अप्रेंटिस ट्रेनिंग क्या होता है कि आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है, तो इट इज लर्निंग बाय अर्निंग. दिस इज अ काइंड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग. ठीक है. अप्रेंटिस सुने, आईटीआई वगैरह डिप्लोमा जो करके आते हैं, फ्रेश अप्रेंटिस हर जगह हर ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट किया जाता है, फ्रेश अप्रेंटिस. ठीक है. नाउ इंटर्नशिप ट्रेनिंग आप समझ गए. रिफ्रेशर ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है? रिफ्रेशर ट्रेनिंग का मतलब होता है रीलर्निंग. हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं, आप जो अगर आपने जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा, अगर आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो क्या आप बहुत टाइम तक उसको याद रख पाएंगे? नो मैम. नहीं याद कर पाएंगे. इसी तरीके से वर्क प्रोफाइल भी होता है. जब आप काम करने जाते हैं एंड इफ यू do not retrain yourself, if you do not allow yourself to relearn the things, so you will not be able to work properly. इसलिए retraining या refresher training is very important part of your working in the organization. ये भी एक type of training होती है. यस मैम. Types of training मालूम है सबको? On the job और off the job क्या होता है? देखो, आज सिर्फ एक्सप्लेन कर देते हैं, नेक्स्ट क्लास में तुमको ये बताएंगे कि क्या होता है ये ट्रेनिंग. मैम ई लर्निंग क्या होता है? ई लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग. Yes. ठीक है. देखो, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग. ट्रेनिंग दो तरीके की होती है, मोस्टली दो तरीके की. एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग और दूसरी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब नाम से क्या समझ में आता है? मैम जो जॉब के दौरान.
किया जाए। बिल्कुल। जो जॉब के दौरान यानी जॉब पे रहते हुए, जॉब के दौरान दोनों ट्रेनिंग होती है, ठीक है, लेकिन जो वर्क प्लेस पे होता है ट्रेनिंग, यानी जो आपका एक्चुअल वर्किंग प्लेस है उस पे जो ट्रेनिंग होती है उसको बोला जाता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और वर्क प्लेस से बाहर अगर किसी प्लेस पे ट्रेनिंग होती है तो उसको बोला जाता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अंडरस्टूड? This is the difference between on the job training and off the job training. आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब तो समझ गए, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, आप गए, आप ऑन द जॉब में ही, जैसे इंश्योरेंस वगैरह है वो तुमको कंपनी में ही जहां काम होता है वहीं पे तुमको ट्रेन करेगा, वहीं पे तुमको काम सिखाएगा। लेकिन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का कोई एग्जाम्पल दे सकता है? Any example that you can think of? मैम जैसे प्लेसमेंट होता है तो वहाँ तैयारी किया जाता है, करवाया जाता है। हाँ, तैयारी कराया जाता है। क्लासरूम लेक्चर भी हो सकता है मैम। हाँ, गुड। क्लासरूम लेक्चर इज अ काइंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। किसी ऑडियो ट्रेनिंग, विजुअल भी हो सकता है किसी मैम। ट्रेनिंग का सेंटर जानते हो तुम लोग? किसी का नाम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का? बहुत सारा सेंटर है जहाँ यस मैम ट्रेनिंग है। दिया जाता है। किसी का नाम? याद नहीं आ रहा मैम। उत्तराखंड में मसूरी में इंडिया का एक बहुत फेमस ऑफ द जॉब ट्रेनिंग सेंटर है, कोई बता सकता है उसका नाम? आईएएस ऑफिसर्स जहां ट्रेन होते हैं उस जगह को क्या बोला जाता है? लवासना। यस, दैट इज एन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, यस मैम। यानी व्हेन दे गेट सिलेक्टेड फ्रॉम यूपीएससी, यूपीएससी ने सेलेक्ट करके उनको हाँ, भेज ये दिया सुन भाई, रहे हैं। जो आईएएस आईपीएस होते हैं, जो भी पहला इनिशियल ट्रेनिंग उनकी वहीं होती है, दैट इज एक्सक्लूसिवली अ ट्रेनिंग सेंटर। वो एक ट्रेनिंग सेंटर ही है जो मसूरी उत्तराखंड में बेस्ड है, तो वहां पर इन लोगों का ट्रेनिंग होता है। दिस इज नोन एज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। उसके बाद जब इनको अपने कैडर में भेजा जाता है तब ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आते हैं, लेकिन उसके पहले ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में लवासना इज द सेंटर। उसके अलावा और कुछ ध्यान है? Anything that you can remember? IICM का नाम सुने हो? No? IICM is Indian Institute of Coal Mines. ये जो कोल इंडिया लिमिटेड है, महारत्न ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, महारत्न ऑर्गेनाइजेशन है कोल इंडिया लिमिटेड, इसका अपना ट्रेनिंग सेंटर है रांची में। ओके, दिस इज नोन एज IICM, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग सेंटर। इसके अलावा एयरपोर्ट के एरिया से क्रॉस किए हो पटना में? Yes, ma'am. You must have crossed that area, which is the airport area. A government organization called Airports Authority of India. आपको इसका लोगो भी अगली बार जाना तो उसको ध्यान से देखना, उसका लोगो बना हुआ मिलेगा तुमको बोर्ड पे, या जहाँ पे भी जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट लिखा हुआ है उस बोर्ड पे पढ़ना, उसका लोगो बना है। वही गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में सारे एयरपोर्ट्स को मैनेज करती है, ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन। इसका अपना ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? इसका अपना ट्रेनिंग सेंटर है CATC इलाहाबाद में। ये सब हुआ ऑफ द जॉब ट्रेनिंग सेंटर। समझ में आया ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब में डिफरेंस? Yes, ma'am. यस मैम। जब आप वर्क प्लेस से दूर किसी जगह पे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, देन दैट इज नोन एज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। अंडरस्टूड? यस मैम। In the next class, we will study further about इस ट्रेनिंग का टाइप्स तुम लोगों को बताएंगे,
ये सारा HR वर्कशॉप प्लीज आप लोग ध्यान से कीजिए. You people never pay attention to add-on courses. I know this. But फर्स्ट सेम में भी आपका जो एड ऑन कोर्स था पेरोल मैनेजमेंट का, उसमें बहुत सारा ऐसा लॉ, लीगल, सब कुछ हम इंक्लूड किए थे, सोशल सिक्योरिटी एंड ऑल दैट, जो एक ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को जानना चाहिए. आपके सिलेबस में बहुत भी कहीं ना कहीं मेंशन होगा, बट द फैक्ट दैट यू विल पास ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन इज अ बिग डिग्री. आप जितने भी बड़े एग्जाम्स हैं उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे एग्जाम देने के लिए. ग्रुप बी कैडर के लिए भी बहुत सारे एग्जाम्स में आपको एलिजिबिलिटी है. सो एज अ person, as an individual also, you should know what is social security, you should know what are the rules, regulations and laws which are guiding you. तो ये सब आप अपने academics के थ्रू ही पढ़ेंगे. So take your courses seriously, okay? Even if you want to continue your career in BBM, then that will be of much use to you. So anyway,